हाय स्टूडेंट्स, आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं संदीप सारण, फिजिक्स लेक्चरर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे थोड़ी सी देर बात करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रिफ्लेक्शन को लेके है। आप सब जानते हैं कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बेस है ऑप्टिक्स का, चाहे आपका 11th-12th क्लास हो, कॉलेज लेवल की क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, सब जगह इसकी इंपॉर्टेंस बराबर है और ये ऑप्टिक्स का बेस है। तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना क्या है कि हाँ, वी नो दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ इन एनी मीडियम। व्हेन लाइट comes from sun or any source of light, it travel straight line path. But we know very well when light strike to the reflecting surface, it change its path. But in case of reflecting surface, it change path but do not change medium. But in case of refracting surface, it change its medium. Today our topic is reflection, and here light strike to the reflecting surface mean when light strike to any reflecting surface, it change its path without changing medium. Mean light change its path but medium do not change. This phenomena is known as the reflection. Actually, reflection is the light phenomena in which light change its path without changing medium, and the reflecting surface is made up by the mirror, and mirror is the smooth and well polished surface which reflect regularly most of light that fall on the surface. Mean mirror एक ऐसे स्मूथ सरफेस और वेल पॉलिश्ड सरफेस है जिस पे हम लाइट स्ट्राइक करें तो वो उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। तो कैसा फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन? लेट अस कंसीडर दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस x x dash. Here is rug surface, but its upper surface is reflecting surface. When light fall on this surface, this falling light is known as the incident ray. This comes out from any source of light, fall on the surface, it return to the same medium, and this light is reflecting ray. And we draw the normal on the surface as like this. This is the normal and n dash. Mean when incident rays mean incoming light that comes out from the surface and fall on the reflecting surface. After reflecting at this point O, it return to the same medium, and this returning wave is known as the reflecting rays. This is the normal, and n dash fall on this surface, mirror surface, or we can say that reflecting surface xx dash. Incident rays make angle with the normal is called angle of reflection, angle of incidence, and normal make angle with the reflecting rays is known as the reflected rays angle. Here I is angle of incidence, this angle between incident rays and normal mean angle of incidence made between the incident rays and normal, and R is called the reflecting angle or reflecting angle made between reflecting rays make with the normal. This is called this I and R. You can take the screenshot of this screen और आप इसके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। इस तरह का जो फिनोमिना है ये रिफ्लेक्शन है। इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं आपको नोट कराता हूं। यहां देखिए, ये आपका कोई ना कोई मीडियम तो है ही। दिस इज मीडियम फर्स्ट और हेयर इज सेकेंड मीडियम, बट इंसिडेंट रेज
in the medium first, and after reflection, reflecting rays also in the same medium. There is no change in the medium by the light. Mean first important case, no change in medium, no change in medium. मीडियम, इस फिनोमिना में मीडियम चेंज नहीं होता, जिसके कारण क्या होगा, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट never change. It means that these are remain same after reflection. इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इंसिडेंट रेज है और जो हमारी रिफ्लेक्टिंग रेज है, उनकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वो चेंज नहीं होती, सेम रहेंगी। अब हम बात करते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स बना सकें। अब जो हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन लॉ क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बेसिक 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टिंग रे and normal lie in same plane. First law is these all incident rays, reflecting rays and normal lie in same plane. That is the first law of reflection. Second law है angle of incidence I must be equal to angle of reflection R. Mean angle I is equal to angle of R. This is the second law. क्वेश्चन में जनरली पूछ लेते हैं कि डिफाइन रिफ्लेक्शन मीन लाइट चेंज इट्स पाथ विदाउट चेंज इन मीडियम and write down its law. Law of reflection are first incident ray, reflecting ray and normal lie in same plane, and second angle of incidence must be equal to the angle of reflection. ये आपका डायग्राम है और ये इसके लॉज हैं। अब हम जो बात करेंगे वो मिरर के बारे में बात करेंगे। मिरर क्या है? देखिए, रिफ्लेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। जनरली जो हमारे मिरर हैं वो 2 टाइप के हैं। हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मिरर को लेके, मिरर मैंने अभी बताया मिरर क्या होता है। मिरर एक स्मूथ और वेल पॉलिश्ड सरफेस है जो मोस्ट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। मिरर 2 टाइप के हैं। एक मिरर जो आपका है वो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, और दूसरे जो मिरर होते हैं वो स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर फिर 2 टाइप के हैं। एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकंड इज कॉनकेव मिरर। द स्ट्रक्चर और सिंबल ऑफ दिस मिरर आर एज लाइक प्लेन मिरर इज द स्ट्रेट लाइन एंड इट्स one surface is opaque and other is well polished. This part is reflecting part, and convex mirror have the structure as like this. This is the convex mirror. This is center of curvature, and this is the concave mirror. This is the center of curvature C. The basic difference between these is here in case of convex mirror, reflecting surface, this surface is reflecting surface away from the center of curvature. This is the center of curvature, and in case of convex mirror, reflecting surface is away from the
center of curvature, but in case of this is the refracting surface, and here refracting surface towards the center of curvature. This is the basic difference between convex and concave mirror. Mirror is just a reflecting surface, smooth or well polished, that reflect most of the light that fall on the surface. These are of two types. First is plane mirror and the second is spherical mirror. Plane mirror have the reflecting surface this, and this is opaque, and this is a straight line. There is no curvature. But spherical mirror further categorized into two types. One is convex and other is concave. In case of convex mirror, the reflecting surface away from the center of curvature. But in case of the concave mirror, reflecting surface towards the center of curvature. Now we discuss one by one and discuss their different property as like. This is plane mirror. This is the straight mirror. Generally, we use this mirror into our house to see our face. Some important question related to plane mirror are as we discuss the property of this mirror one by one. First, focal length of plane mirror is equal to infinity. अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है तो इनफाइनाइट होती है. हम चर्चा करेंगे ये फोकल लेंथ होती क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है. वी डिस्कस वन बाय वन. सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आल्सो इन्फिनिटी. थर्ड है कि अगर मान लीजिए इससे आपने यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी जिसका डिस्टेंस इससे u डिस्टेंस है, तो इसकी इमेज जो फॉर्मेशन होगी इतने ही डिस्टेंस पे होगी. यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर distance of object from mirror u is equal to distance of image from mirror must be equal. ये दोनों बराबर होंगे. यानी ऑब्जेक्ट हमारा जितने डिस्टेंस पे होगा उसकी इमेज मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे होगी. नंबर 4 बात आती है कि साइज ऑफ इमेज must be equal to size of object. जितने साइज का हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की इमेज बनेगी. अगर दोनों इक्वल बनेगी तो मैग्निफिकेशन जो होती है, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन m वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर हो जाएगी. क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर हैं, जितने साइज का ऑब्जेक्ट उतने साइज की आपकी ये बनेगी. एक चीज होती है नंबर 6 पे, नंबर ऑफ इमेज बिटवीन इंक्लिन्ड टू मिरर. इंक्लिन टू मिरर के बीच में इमेज कैसे बनती है. मान लीजिए लेट टू मिरर M1 and M2 are inclined at angle theta. Then number first condition है if 360 upon theta is equal to, this is even number. फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि जो हमें एंगल दे रखा है वो थीटा है और 360 को हम डिवाइड करें तो यहां दो पॉसिबिलिटी आपकी बन जाएंगी. एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये इवन नंबर मिले, इवन नंबर, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी ये ओड नंबर मिले.
यानी मैं इसका एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे दो मिरर 60 डिग्री पे हैं, 60 डिग्री थीटा की वैल्यू रखो तो 6 इवन नंबर मिलेगा। अगर 72 ले लिया जाए तो 5 आ जाएगा। तो अगर इवन नंबर आए तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगी इस केस में, नंबर ऑफ इमेज बराबर है, फॉर्मूला यूज करेंगे 360 बाई थीटा माइनस 1, यानी जो इवन नंबर आया उसमें से एक कम कर देंगे। अगर ओड आता है तो फिर इसकी दो पॉसिबिलिटी होंगी, एक आएगा इफ देर इज सिमेट्री और एक आ जाए देर इज नो सिमेट्री। इफ एक तो सिमेट्री हो, एक आ जाए इफ देर इज नो सिमेट्री, देर इज नो सिमेट्री, देर इज नो सिमेट्री। दो कंडीशन यहां हो सकती है कि अगर इनके बीच में सिमेट्री है यानी सिमेट्रिकल कंडीशन है तो हमारी जो वैल्यू बनेगी सिमेट ओड नंबर हो तो एक कम हो जाएगा, फिर फॉर्मूला होगा 360 थीटा माइनस 1, और सिमेट्री नहीं हो तो 360 बाई थीटा, ये आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर आपका इवन नंबर आता है डिवाइड करने से तो उसमें से एक कम कर दें, यानी पहले हमारे को एंगल दिया मिलेगा, एंगल दे रखा तो 360 को एंगल से भाग दे के देख लो। अगर ये आपका इवन नंबर आए तो उसमें से एक कम कर देंगे हम 360, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ओड नंबर हमारा आंसर आता है तो अगर सिमेट्री है उनके बीच में तो एक कम करें और सिमेट्री नहीं है तो हम 360 बाई थीटा की वैल्यू उसमें रख देंगे। ये इतनी सी बातें अगर आपको याद हो जाएंगी तो ये प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ बातें हैं। एक प्लेन मिरर से रिलेटेड एक बात और बता देता हूं मैं, इमेज जो फॉर्मेशन होती है ये रीजनिंग के टाइप का क्वेश्चन है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसे पी बनाना हो, यहां आपका मिरर आ जाए, ये मिरर है तो मिरर में आप देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इस तरीके की मिरर बनेगी। इसको इन्वर्जन बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, यहां मैं जो नाम शब्द लिखना चाहूंगा, लेटरल इन्वर्जन, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन जाता है। लेटरल इन्वर्जन क्या चीज होती है, देखिए आप इस बात का ध्यान रखें कि हम ऐसे मिरर में कोई चीज देखते हैं, जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट में दिखेगा और राइट पार्ट है उसका लेफ्ट में दिखेगा, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है कि राइट जो पार्ट है वो लेफ्ट में दिखे और लेफ्ट पार्ट है वो हमें राइट में दिखे, जबकि वाटर के अंदर क्या होता है, अप और डाउन इंटरचेंज होते हैं। देखिए मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं जो हमें समझनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये स्पेशल टर्म्स हैं जो हम किसी भी मिरर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं जर्नली, चाहे वो हम इसका साइन कन्वेंशन यूज करें, चाहे हम इसके बारे में थ्योरी लिखें, तो हमें मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का पता होना चाहिए। जैसे हमने ये एक स्फेरिकल मिरर लिया, स्फेरिकल मिरर M1 M2 है, तो आप यहां से देख पाएंगे सबसे पहली चीज चलती है कि अपर्चर ऑफ मिरर क्या है। पहली डेफिनेशन मैंने लिखी अपर्चर, अपर्चर का मतलब होता है मिरर का वो पार्ट जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी। और ध्यान रखना कंप्लीट ऑप्टिक्स के अंदर अपर्चर ऑफ मिरर शुड बी स्मॉल, यानी हम जो 11th 12th या 10th में जो भी ऑप्टिक्स का पार्ट पढ़ते हैं उसमें हम चाहे लेंस लें या मिरर लें उसका अपर्चर स्मॉल होना चाहिए। तो स्मॉल अपर्चर का मतलब है कि इस मिरर का थोड़ा पार्ट है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो अपर्चर की डेफिनेशन होगी इट इज द पार्ट ऑफ मिरर थ्रू विच लाइट रिफ्लेक्टेड। अगर ये छोटा पार्ट होगा तो इसका अपर्चर स्मॉल है, अगर ये लार्ज होगा तो इसका अपर्चर लार्ज हो जाएगा। और यहाँ हम जो ऑप्टिक्स के अंदर है अपर्चर स्मॉल लेके चलते हैं। सेकंड बात चलती है कि पोल ऑफ मिरर क्या होता है। पोल ऑफ मिरर का मतलब होता है जो ये मिरर है M1 M2, इस मिरर का मिडल पार्ट है, यानी पोल इज द मिडल पार्ट ऑफ मिरर दैट लाई ऑन द मिरर, यानी M1 और M2 का मिडल पार्ट जो मिरर पर लाई करता हो उसको हम पोल ऑफ मिरर कहते हैं। ध्यान रखना सारे के सारे डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, जितने भी डिस्टेंस है वो इस पोल से मेजर किए जाते हैं। तो पोल क्या है, इट इज द मिडल पार्ट ऑफ मिरर दैट लाई ऑन द मिरर। थर्ड कंडीशन चलती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बार बार वर्ड यूज करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअल में क्या है, ये मिरर अगर आप देखो
तो इसको अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो ये कोई ना कोई एक स्फीयर बनेगा ऐसे। तो ये मिरर जो है किसी एक स्फीयर का पार्ट है। मिरर बी दी पार्ट ऑफ स्फीयर, स्मॉल पार्ट ऑफ स्फीयर। और जो ये जब स्फीयर बना तो इसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा, क्योंकि जब हम कोई भी स्फीयर बनाते हैं तो उसका सेंटर होता है एक। और जो सेंटर है उस सेंटर को अगर आप देखें सी से रिप्रेजेंट करें तो ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज पार्ट इज मिरर, यानी उस गोले का ये सेंटर है जिसका ये मिरर पार्ट है। क्योंकि ये देखोगे तो कंप्लीट बनाओगे गोला बन जाएगा, आपका स्फीयर बन जाएगा, उसका छोटा सा पार्ट मिरर है। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद चलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से लिखते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पी को मिला दो, यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको कैपिटल आर से लिखते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। इस मिरर के पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारी, इससे और पोल के को मिलाने वाली जो लाइन होगी, लाइन का मतलब होता है विच कैन एक्सटेंड इन बोथ साइड। लाइन को हम दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं। सी और पी को जो लाइन मिलाई, इधर भी आगे निकल जाए इधर भी, ये जो लाइन है ये जो पोल और सेंटर से पास होती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। और लास्ट हमारा चलता प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। बहुत अच्छी चीज है ये भी कि फोकस क्या है। फोकस एक पॉइंट होता है व्हेन लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल कोई भी लाइट आई, रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस भी पॉइंट पे इस प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करे, ये पॉइंट प्रिंसिपल फोकस होता है। एक्चुअली मीट करे और अपीयर टू मीट, क्योंकि कुछ ऐसे मिरर होंगे जैसे हमारे कॉन्वेक्स मिरर है, उसके अंदर क्या होगा, ये एक्चुअल में नहीं काटेगी, हमें ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे ये काट देगी, मीन अपीयर टू मीट। और यहाँ क्या हो रही है, कॉन्केव मिरर था इसलिए एक्चुअल में काट दिया। तो जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को काट दे वो प्रिंसिपल फोकस होगा। और लास्ट होता है फोकल लेंथ। जो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर इन जानकारी का आपको पता होगा तो मान के चलो कि आप आराम से जो भी वर्ड यूज करेंगे उसको आसानी से समझ लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक इसके साइन कन्वेंशन की बात कर देता हूं मैं। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है साइन कन्वेंशन। पहली कंडीशन है कि ऑल डिस्टेंस आर measured from pole of mirror। तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि जितने भी डिस्टेंस मापे जाएंगे वो पोल से मापे जाएंगे। और दूसरी बात जो इसमें होती है कि डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज are taken as positive and in opposite direction taken as negative। यानी इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में पॉजिटिव और अपोजिट साइड में नेगेटिव। यहां से समझ लो कि मान लीजिए ये हमारा मिरर, मान लो ये पॉइंट पी पोल है, ये पोल है, इसके इस पोल के आप सारे के सारे डिस्टेंस इस पोल से मापेंगे। पोल के लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव, अपर हाइट होंगी वो पॉजिटिव और डाउनवर्ड होंगी वो नेगेटिव मापी जाएंगी। इस बात को आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन करेंगे कि हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस में
यानी फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। हम रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर क्या है यहाँ पे, आर है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से और जो हमारा पोल है इसके बीच का डिस्टेंस, और नेगेटिव साइड है यानी लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, और एफ होता है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को माइनस एफ, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड में है। हमने क्या किया कि यहां हमने एक मिरर कंसीडर किया M1 M2 जिसका पोल है P, ये इसका पोल है यहाँ पे, और यहां से क्या हुआ है कि पैरेलल रेज आई जो प्रिंसिपल जो हमारी एक्सिस है, इस एक्सिस के पैरेलल एक इंसिडेंट रेज आई जो इस के पॉइंट पे स्ट्राइक करके ए से, और ये इधर से होती हुई इधर हमारी प्रिंसिपल फोकस पॉइंट को काटती हुई आगे निकल गई। तो इस डायग्राम से हम क्या करेंगे, फ्रॉम डायग्राम से देखिए हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं के पॉइंट पे, सी पॉइंट से, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इंसिडेंट रेज है ये, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी आई, और रिफ्रैक्टेड रेज है ये, रिफ्लेक्टेड रेज है ये एंगल बनाएगी आर। तो फ्रॉम डायग्राम एंगल ए के सी इज इक्वल टू एंगल सी के एफ, यानी आई एंगल इज इक्वल टू आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। आप इस चीज को देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हमने दूसरी कंडीशन यहां लगा दी कि एंगल ए के सी इज इक्वल टू ए के और सी एंगल किसके बराबर हो जाएगा, के सी एफ के बराबर हो जाएगा, के सी एफ के, क्योंकि ये कौन से एंगल हो गए हमारे अल्टरनेटिव एंगल। हम सब जानते हैं कि अल्टरनेटिव एंगल होगी, ये अगर आई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आई। फिर हमने देखा कि ये फर्स्ट ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या पाया हमने कि एंगल सी के एफ जो है वो के सी एफ के बराबर हो गया। अब देखिए ये एंगल है और ये एंगल है, दोनों बराबर हो गए। हमें इस चीज का पता है किसी भी ट्रायंगल में जो सेम एंगल होते हैं उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, हेंस सी एफ साइड मस्ट बी इक्वल टू एफ के साइड। क्यों, क्योंकि इक्वल एंगल हैविंग अपोजिट साइड इक्वल, इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगी, ये साइड और ये साइड क्या हो जाएंगी, दोनों इक्वल। लेकिन अपर्चर ऑफ mirror is so small, अपर्चर ऑफ मिरर इज सो स्मॉल। अगर अपर्चर बहुत छोटा है देन क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया ये जो के पॉइंट हमारा ये पी पॉइंट के बहुत क्लोज हो जाएगा। अपर्चर छोटा होने का यही बेनिफिट होता है कि एफ से के का जो डिस्टेंस है, एफ के डिस्टेंस है वो एफ पी के इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन कह दो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा हमें, इन दोनों को देखिए, एफ के की वैल्यू एफ पी के बराबर है तो सी से एफ की वैल्यू एफ से पी के बराबर हो जाएगी। इस इक्वेशन को 4 कह देते हैं हम नंबर। अब जैसे ये 4 इक्वेशन हुई तो हम डायग्राम से क्या देख सकते हैं, फ्रॉम डायग्राम से देखिए सी से पी डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, सी एफ प्लस एफ पी। चेक करके देख लीजिए, सी से पी का डिस्टेंस सी से एफ, एफ से पी के बराबर होगा। लेकिन सी से एफ और एफ से पी, सी से एफ किसके बराबर है, एफ पी, तो यहाँ एफ पी आ जाएगा, ये भी एफ पी हो गया, कितना हो गया, सी से पी हो गया 2 टाइम ऑफ एफ पी। अब ये इसके बराबर हो गया तो साइन कन्वेंशन का यूज करें, यूजिंग साइन कन्वेंशन
और साइन कन्वेंशन का यूज करके हम जब वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगी, देखिए सीपी की वैल्यू ये रही, कितनी वैल्यू है -r, यहां रख दिया -r और ये हो गया -2 ऑफ f, माइनस से माइनस काटोगे तो r इज इक्वल टू 2f, ये स्मॉल f, या f इज इक्वल टू r/2। इन दोनों इक्वेशन से हमें पता लगता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल होती है, या ये कह सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। इस तरीके से हम एफ और आर के बीच में एरर के लिए रिफ्लेक्शन रिलेशन निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स बना लें, ये हमारा रिलेशन था। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो। आप सबका बहुत बहुत आभार।